پاکستانی جو خاتون ہے، پاکستانی مرد نے اس کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، تو اس مظلوم کی داد رسی ہونی چاہیے۔ اس وقت ہمارا میڈیا بھی خاموش ہے، اور وہ جو نام نہاد ہمارے اس وقت سیاستدان ہیں وہ بھی خاموش ہیں، اور نام نہاد مذہبی اسکالر بھی وہ بھی خاموش ہیں کہ اس بچی کی داد رسی کے لیے وہ وزیر اعظم کو کیوں نہیں کہتے، کیوں نہیں کہ جو ہماری جو جوڈیشری ہے وہ ایکشن میں آتی، اور سو موٹو کیوں نہیں لیتے وہ۔ محترم طٰہٰ قریشی صاحب، دوستوں میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ میرے انتہائی محترم اور صاحب علم جناب طٰہٰ قریشی صاحب، جن کا تعلق لندن انگلینڈ کا UK سے ہے، اور ان کو یہ شرف ہے کہ یہ ہی از دا ممبر آف برٹش امپائر۔ یہ پاکستان کی سیاست، یہ انگلینڈ کی سیاست، انہوں نے کتابیں بھی تحریر کی ہیں، اور ان کا دنیا کے مختلف سربراہان مملکتان اور صدران سے، ملکہ برطانیہ سے، مطلب باقاعدہ طور پہ ان کے رابطے، ان کا پرسنلی ان سے ملنا، ان کی دعوتوں میں جانا، اس کے ساتھ ہی ان کا اس چیز کے اندر کہ انسانی حقوق کی پاسداری کیسے ہونی چاہیے۔ مذہب کا تو مطلب بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ماشاءاللہ ان کے چہرے سے عیاں ہیں، لیکن انسانی حقوق کی پاسداری کیا ہے، ہم اس حوالے سے جناب قریشی صاحب سے پوچھیں گے کہ طٰہٰ صاحب، اس بچی کے ساتھ جو ظلم ہوا، یا یہ بچی جو اپنے ساتھ ہوئے ظلم کی کہانی بیان کر رہی ہے، آپ کے خیال میں جو خلیفہ صاحب ہیں جن کی اس بچی نے بیعت کی ہوئی ہے، کیا ان کے جواب سے یا ان کے رویے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بچی کو کسی قسم کا کوئی انصاف ملا؟ جی طاہر جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا اور ذمہ داران کا شکر گزار ہوں کہ ایک انتہائی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے دعوت دی گئی۔ دیکھیے، میں شروع دن سے لوگوں کو یہی بات کہتا رہا ہوں کہ احمدیت کے اندر، یا یہاں پرٹیکولرلی جو قادیانی گروپ ہے احمدیوں کا جو لندن بیسڈ ہے، ان کے اندر کرپشن بہت زیادہ ہے، اور جو فارمر احمدیز ہیں وہ اس کرپشن کو دیکھ چکے، انہوں نے دیکھا اور پھر پیچھے ہٹ گئے۔ اور یہ مرزا صاحب کے وقت سے لے کر مرزا بشیر الدین محمود کا جو وقت تھا وہ بھی دیکھ لیں، کئی لوگ ان کی جماعت کو چھوڑ کے چلے گئے اس کرپشن کی وجہ سے۔ اور یہ میں اخلاقی کرپشن کی بات کر رہا ہوں، مالی کرپشن ایک علیحدہ موضوع ہے جس پر کبھی پھر گفتگو ہوگی۔ جی 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 یہ جو اخلاقی اقدار ہے نا جی، اس بچی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، سب سے پہلے تو میں اس پر انتہائی افسوس کا اظہار کرتا ہوں، اور اس بچی اور اس کے خاندان کے لیے جتنے بھی ان کے افراد ہیں، میری طرف سے یہ ایک افسوس کا بہت زیادہ اظہار ہے، ہمدردی ہے کہ خدا کسی کی بچی کو بھی یا کسی بھی عورت کو اس مشکل سے مت گزارے۔ تیسرا جو اس میں نقطہ بیان کروں گا کہ یہ جو گفتگو ہے نا جی، یہ بڑے ہی میں ایک دل پر بوجھ رکھ کر بات کر رہا ہوں کہ کسی بچی کی یہ عزت کا معاملہ ہے، اس میں ہم کوئی اس گفتگو کو کوئی مزے لینے کے لیے یا کوئی پوائنٹ سکور کرنے کے لیے بات نہیں کر رہے ہیں۔ ویری ٹرو، ویری ٹرو۔ اور اگر کوئی چینل یا کوئی افراد یا کوئی گروپ اس کو اپنے پوائنٹ سکور کرنے کے لیے اس موضوع کو لے کر چل رہے ہیں، تو میرے خیال میں نہ وہ کوئی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، اور نہ ہی وہ اس جو مظلوم بچی ہے، بیچاری خاتون، ہماری بہن ہے، ہماری بیٹی ہے، اس کے ساتھ کوئی انصاف بھی نہیں ہوگا میرے خیال میں۔
चौथा पॉइंट इसमें ये कहूँगा कि जो मिर्ज़ा साहब की जो गुफ्तगू हुई है उस बच्ची के साथ या उस खातून के साथ, मैं समझता हूँ कि इंतहाई वो अ, बहुत ही गिरी हुई गुफ्तगू है वो। हुँ, किसी भी लिहाज से, किसी भी मज़हबी पेशवा को ये यानी कि मैं कह देता हूँ कि जी वो मज़हबी पेशवा ही सही, क्योंकि वो ज़ाहिर है उनको खलीफा कह रही थी, हज़रत साहब करके बुला रही थी। तो मैं उस तनाज़ुर में गुफ्तगू कर रहा हूँ कि वो राइट, उनको वो मिर्ज़ा साहब जो थे, वो उस खातून के मज़हबी पेशवा थे। किसी भी मज़हबी पेशवा को ये हक नहीं पहुँचता कि उसको ये तलकीन करे कि ब्रश दिस मैटर अंडर द कारपेट, राइट, कि इसको मिट्टी पाओ, यानी कि भूल जाओ, छोड़ो, दफा करो, बस छोड़ दो, जो हो गया वो हो गया। कानून में मत ले जाओ, किसी और इदारे के पास ले जाओ, तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। ये मैं समझता हूँ कि बरतानिया के ये कानून के खिलाफ है। ये ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है। हुँ, ये जो हैरासमेंट के लॉज हैं यहाँ पर यूके के अंदर, ये उनकी खिलाफ वर्जी है। मैं हुँ। इस वक्त किसी मजहबी गुफ्तगू में शेख साहब नहीं पढ़ना चाहता। जी, मैं बिल्कुल हम नहीं सिर्फ जा यहाँ के ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है कि एक बच्ची है, वो मजलूम है और उसको आप हैरास कर रहे हैं कि जी तुमने बैत किस चीज की फिर की है, हुँ, या बैत से निकल जाने के उसको तड़ियां लगा रहे हैं, उसको धमकियां दे रहे हैं कि मैं तुझे बैत से निकाल दूंगा। हुँ, उस बच्ची ने जुर्रत करके अपने ऊपर जुल्म की दास्तान को बयान किया है। तो मिर्जा साहब को चाहिए था कि उसके साथ हमदर्दी का इजहार करते, बल्कि उसकी उंगली पकड़कर कहते कि लो जी मैं आपको इस इदारे के पास लेकर जाता हूं जो वेरी यहाँ का कानूनी इदारा है। वेरी ट्रू सर, वेल सेड। तो ये शेख साहब मेरी 2 बातें होंगी। एक तो ये है कि जो आप जैसे लोग जो कि अहमदियत को खैरबाद कहकर इधर आए इस्लाम की तरफ और आपने हकीकत को जाना, अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए, और आपके हाथों से बहुत सारे लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह हिदायत भी पाई है, जिस पर मैं बहुत ही आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। जी सर। आप अपने चैनल के तवसत से ये बात लोगों तक पहुँचाइए कि हुँ, इस इश्यू को अपने पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल कोई सही। हमदर्दी का इज़हार करें उस खातून के साथ, हुँ, लेकिन उसके साथ-साथ उसकी जो अखलाकी जो मदद है, वो हमारी तरफ से होनी चाहिए। बिल्कुल सही, वेरी ट्रू जी, वेल सेड सर, आई रियली एप्रिशिएट और यही थैंक चीज़ जो है, इस्लाम हमें इसी चीज़ की तालीम देता है कि हमें दूसरे की इज़्ज़त बचानी है, ना कि उसको उछालना है। जी, ये बिल्कुल, ये बिल्कुल। जो चीज़ अब है हमारे बहुत सारे दोस्त इन चीज़ों पे आ गए हैं कि वो जो है उस बेचारी को वो अपनी जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी कि जी ये उसकी जी इज़्ज़त लूटी गई, उसको रेप किया गया, उसको ये किया गया, उसको वो किया गया। मेरे ख़्याल में उसके उस मौज़ू को तो वो तो जो जुर्म है वो पाकिस्तान में उसका इर्तिकाब हुआ, और हुँ, पाकिस्तान के चैनलों को भी कुछ शर्म और हया करनी चाहिए कि इस मामले को वो उठाएँ बिल्कुल, और जाकर वजीर आजम को कहें कि एक पाकिस्तानी जो है खातून है, पाकिस्तानी मर्द ने उसके साथ ये जुल्म किया है, तो इस मजलूम की दादरसी होनी चाहिए। इस बिल्कुल वक्त सही। हमारा मीडिया भी खामोश है, और वो जो नाम नहाद हमारे इस वक्त सियासतदान हैं, वो भी खामोश हैं, और नाम नहाद मजहबी स्कॉलर भी वो भी खामोश है कि इस बच्ची की दादरसी के लिए वो वजीर आजम को क्यों नहीं कहते, क्यों नहीं कहे, जो हमारी जो जुडिशरी है वो एक्शन में आती और सो मोटो क्यों नहीं लेते वो। अ, कुरैशी साहब टू बी ऑनेस्ट विद यू आपके ये चंद आखिरी अल्फाज ने यकीन करें कि जहाँ पे मुझे झंझोड़ के रखा है बहुत से लोगों पे ये चीज़ अल्लाह करे कि ये उनके कानों में भी आपके अल्फाज पहुंच जाएं और वो गहरी नींद से सोए हुए उठें कि ये हम कोई प्राइम मिनिस्टर को अहमदियत के खिलाफ नहीं बुला रहे एक इंसान के हक के लिए ये बात की जा रही है। ये इंसानी हकूक की बात है, एक बच्ची की इज्जत का मसला है, उसके हवाले से बात कर रहे हैं, हम मज़हब के हवाले से बात नहीं कर रहे। आई रियली एप्रिशिएट एंड थैंकफुल इसके लिए शेख साहब जी, आपके चैनल के वसातत से मैं ये भी कहना चाहूंगा जी, ज़रूर। कि देखिए ये हमारी बहन है, उसके साथ ज्यादती हुई, तो हम क्या सोचेंगे, हमें क्या करना है। उसके लिए चैनल्स को मैं समझता हूं कि राइट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मसले को उठाना होगा, और पॉलिटिकली भी इसको एक्टिवेट करना होगा कि ऐसा जो बंदा जिसको वो दरिंदा कह रही है, दरिंदा कह रही है,
जी आपने सुना उस लड़की की आवाज में जी कि उसने उसको क्या कहा है। अब इस कदर वो बेचारी उस जुल्म में पिसती रही, तो अब और कितनी वहां बच्चियां होंगी जो पिसी होंगी, पिस रही होंगी, और आइंदा आने वाली नस्लें वहां पिसेंगी। तो ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि ये जो रियासत मदीना का जो जिक्र करते हैं, इनको चाहिए कि हमारी अदलिया भी सो मोटो नोटिस दे, और हमारे जो वजीर आजम साहब हैं इमरान खान साहब, मेरी उनसे भी दरखास्त है कि ये मदीना की रियासत बनाना चाहते हैं तो इस मसले की तह तक पहुंचे और उस बच्ची की पूरी जो है वो इमदाद करें। और तीसरा, जो हमारे मजहबी पेशवा है वहां पर, जो जेन्युइन है और इनजेन्युइन जो भी हैं, जो भी इस वक्त हुकूमत के नजदीक हैं, उनको चाहिए कि इस मसले को मीडिया पर उठाएं और उस बच्ची की दाद रसी करें। ये कोई बात अहमदियत के या कादियानियत के या मिर्जा साहबान के या उनके खानदान के बात खिलाफ नहीं। ये एक जो हमारी मजलूम बहन है, उसको उस जालिम के खिलाफ सपोर्ट देनी है, बस ये नुकता है, ह्यूमन राइट्स के तहत और हैरासमेंट जो हो रही है उसके तहत। कुरैश साहब, मैं आपसे अर्ज करूं, ये 2 मिनट मेरी बात सुन के जाइएगा, और ये दूसरों के लिए भी, मतलब ये एक चीज जो है इस पे भी अगर तवज्जो दें दूसरे लोग भी तो बड़ी नवाजिश होगी उनकी। इस गुफ्तगू के बाद मैं सिर्फ 2 का जिक्र करूंगा। मेरे पास बहुत से ऐसे फोन कॉल्स, ईमेल्स और मैसेजेस हैं, लेकिन सिर्फ 2 का अर्ज करूंगा। एक खातून ने कहा कि मेरा दिल करता है कि मैं अभी हुजूर को खत लिखूं और मैं अपनी जान छुड़ा लूं, नंबर 1। दूसरा, एक बच्ची बिल्कुल इसी तरह, उसने कहा कि मैं जूडो कराटे सीखने जाती थी रवा में, और मेरे साथ वो शख्स जो उस जूडो कराटे स्कूल को चला रहा था, और ये सारे लोग जो इनकी सदर अंजुमन अहमदिया के सारे बड़े बड़े लोग हैं, वो सब आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। वो मेरे साथ जो ज्यादती करता रहा और वीडियोस मेरी बनाता रहा, और उसके जरिए जो मुझे ब्लैकमेल करता रहा। जब मैंने इसकी शिकायत की तो जिसके पास मैंने जाके शिकायत की, वो अगले दिन इंस्ट्रक्टर उसे कहने लगा, जहां तुम गई थी ना, अब उसका भी हिस्सा तुम्हें देना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि ये अहमदियों के लिए मेरा खास तौर पे ये चीज है। मैं गलत बयानी से काम नहीं ले रहा, लेकिन मैं उनकी कोई आईडी जाहिर नहीं कर सकता, मैं कोई कुछ ऐसी चीज नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको सही कह रहा हूं, कोई बच्ची झूठ नहीं बोल सकती इस तरह, अपनी जात को, अपनी इज्जत को लेकर कोई बच्ची नहीं बोल। ये है मतलब, लेकिन इसके साथ ही निदा को मैं सल्यूट इसलिए करता हूं कि उसकी हिम्मत ने बहुत सी मुर्दा रूहों के अंदर जिंदगी की रूह फूंक दी है। बहुत बेशक, वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है इस पर जी। ताहा साहब, आपका कोई सब बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का, मैं आपका बड़ा ममनून हूँ, और अल्लाह ताला आपको सेहत और जिंदगी और खुश रखे जी। बड़ी नवाजिश। फारूक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया जी। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच जी, यू आर डूइंग ए वंडरफुल प्रोग्राम।